آپ میرا یقین کریں یا نہ کریں، میں بزدل یا ڈرپوک نہیں، لیکن میرے ساتھ جو حادثہ گزرا ہے اس نے مجھے اتنا دل برداشتہ کر دیا ہے کہ معلوم نہیں اب پتا بھی کھڑکے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور گزرے ہوئے واقعات کا تصور ذہن کے پردے روشن کر دیتا ہے، جیسے رونگٹے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پسینہ آنے لگتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہوں اور خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہوں کہ کہیں پھر سے اس حادثے کا شکار تو نہیں ہو جاؤں گا۔ لیکن اس حادثے کو گزرے ہوئے کئی برس بیت چکے ہیں، مگر محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے یہ کل ہی کی بات ہو۔ مجھے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ ڈاکٹر ہونے کے سبب میرے اعصاب بہت مضبوط تھے۔ مردوں اور زندوں کے جسم کی چیر پھاڑ کرنا میرا مشغلہ تھا، اور MBBS کے دوران بھی میں یہ سب کرتا رہا، اور اپنے شہر میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں تعینات ہونے پر بھی میں نے کئی آپریشن اور پوسٹ مارٹم کیے۔ مظفر نگر سے ٹرانسفر کرانے سے پہلے ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ میں کھانا کھا کر بستر پر لیٹا ہی تھا کہ ہسپتال کا ایک ملازم میرے پاس آیا اور اس نے اطلاع دی کہ ایک بہت سیریس کیس آیا ہے۔ اس اطلاع پر اپنے فرض کو محسوس کرتے ہوئے میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا، گھر سے نکلا اور ہسپتال کی طرف چل دیا۔ میں شروع سے ہی بہت خدا ترس اور رحم دل ہوں، اور لوگوں پر ترس کھانا میری عادت میں شامل ہے۔ ہسپتال پہنچا تو میں نے دیکھا کہ چند افراد ایک عورت کو چارپائی پر لیے وہاں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے، جو شاید مریضہ تھی، جو مجھے دیکھتے ہی رونے لگی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیٹی کو بچا لیں ورنہ میں مر جاؤں گی، اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے تسلی دی، خاتون، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اماں جی، اللہ نے چاہا تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر چارپائی پر دراز مریضہ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا۔ وہ 17-18 سال کی ایک نوجوان اور خوبصورت دوشیزہ تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ آہستہ آہستہ سانس لے رہی تھی۔ چہرہ بالکل نیلا پڑا ہوا تھا، جیسے اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ ہو۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر نبض چیک کی۔ نبض بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ میں نے اپنے ملازم سے ٹارچ منگوائی اور ٹارچ کی روشنی میں اس کی آنکھوں کے پپوٹے اٹھا کر اس کی آنکھیں کھول کر دیکھیں۔ اس کی آنکھوں میں مجھے عجیب سی وحشت دکھائی دی، جیسے وہ کسی سے بہت خوفزدہ ہو، اور شاید خوف ہی اس کی بے ہوشی کی وجہ بنا ہو۔ بڑی عمر کی عورت میرے پاس ہی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، اماں جی، اسے آخر کیا ہوا ہے جو اس کی یہ حالت ہو گئی؟ بخار تو نہیں ہے کیونکہ اس کا بدن ٹھنڈا پڑ رہا ہے۔ اماں میری بات سن کر بولی، بیٹا میں کیا بتاؤں، میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ آپ نے دیکھا رنگ کیسا ہلدی کی طرح پیلا ہو رہا ہے، وہ بڑی اماں روتے ہوئے بولی۔ میں نے پیچھے کھڑی ہوئی بھیڑ کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ عورت بھرائی ہوئی آواز میں بولی، یہ سب میرے عزیز اور رشتہ دار ہیں، میرا شوہر اور بیٹا بھی انہی میں ہے۔ اس نے 2 افراد کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، لڑکی کی یہ حالت کب سے ہے؟ کیا یہ شادی شدہ ہے؟ بڑی اماں نے کہا، نہیں، شادی میں ابھی 3 ماہ پڑے ہیں، البتہ منگنی گزشتہ سال ہوئی تھی۔ مجھے لڑکی کے بارے میں تفصیلی معلومات چاہیے تھی، لیکن مردوں کے سامنے پوچھ گچھ کرنا مناسب نہ تھا۔ میں نے بڑی اماں کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور ملازم سے کہا کہ مریضہ کو چیک اپ روم میں لے جائے۔ پھر میں اپنے کمرے میں آیا اور بڑھیا کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ بیٹھ گئی تو میں اسے سوال کرنے لگا۔ اس نے میرے سوالات کے جو جوابات دیے ان کے مطابق لڑکی کا نام سلطانہ تھا اور وہ میٹرک کر چکی تھی، اور ان کا گھر شہر سے باہر کبیر والا روڈ پر تھا۔ 2 دن پہلے وہ گھر میں آئی ہوئی مہمان اور کزن آسیہ کے ہمراہ شام کے وقت چہل قدمی کے لیے آبادی کے عقب میں واقع کھیتوں کی طرف گئی تھی۔ وہاں سے واپسی پر وہ بہت خوفزدہ تھی۔ آسیہ نے بتایا تھا کہ چہل قدمی کے دوران سلطانہ رفع حاجت کے لیے ایک کھیت میں گئی تھی، اور جب واپس آئی تو آسیہ سے بولی کہ جلدی گھر چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ گھر آ کر وہ خاموشی سے سو گئی تھی، لیکن صبح اس کی حالت ایسی تھی جیسے برسوں کی بیمار ہو، بار بار چونکتی اور ادھر ادھر دیکھتی ہوئی سہم جاتی تھی۔ گھر والوں نے اس سے پوچھنے کی کافی کوشش کی تھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ بستی کے ایک بزرگ عالم کو بلا کر اس پر دم درود کروایا گیا تھا، لیکن سلطانہ کی طبیعت سنبھلنے کے بجائے اور بگڑتی چلی گئی تھی۔ نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، بستر پر پڑی خلا میں گھرتی رہتی تھی۔ پھر گزشتہ روز سے اس پر غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ آج وہ دوپہر کے بعد سے غشی میں مبتلا تھی۔ بزرگ عالم نے اس پر کئی بار دم کیا تھا، لیکن وہ ہوش میں نہ آئی۔ تب اسے ہسپتال لایا گیا تھا۔ یہ سب کچھ سن کر میں نے اندازہ لگایا کہ کسی خوف کے سبب ہی اس کی یہ کیفیت تھی۔ اس پوزیشن میں ظاہر ہے ڈاکٹر کے علاج سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔
बहरहाल मैंने उन लोगों की तसल्ली के लिए लड़की को होश में लाने के लिए तदबीरें की और उसने आंखें खोल दी। खुद को अस्पताल में देखकर एक लम्हा के लिए उसकी वीरान सी आंखों में हैरत नमदार हुई। फिर वो अपनी माँ की तरफ देखने लगी। अम्मी, क्या मैं बीमार हूं जो आप मुझे यहां लाई हैं? उसने आहिस्ता से पूछा। नहीं तो, बुढ़िया ने उसकी पेशानी चूमी। तुम बेदार नहीं हो रही थी इसलिए हम परेशान हो गए कि न जाने तुम क्यों नहीं जागती। सुल्ताना, मैंने पहली बार उसे मुखातिब किया, तबीयत कैसी है? कोई तकलीफ दर्द तो महसूस नहीं होता? जवाब में उसने नफी में सर हिलाया। तकलीफ तो कोई नहीं, अलबत्ता थकावट सी महसूस होती है। बुढ़िया ने कहा, बेटी डॉक्टर साहब को अपनी सही हालत बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूं अम्मी, आपने ख्वामख्वाह डॉक्टर साहब को जहमत दी। उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमदार हुई। उस कमरे में हम तीनों के सिवा कोई नहीं था। मैंने बुढ़िया से कहा, अम्मा आप बाहर ठहरें, मैं इससे चंद सवाल करूंगा, हो सकता है आपकी मौजूदगी में इसे झिझक महसूस हो। बुढ़िया ने सर हिलाया। फिर सुल्ताना से बोली, बेटी ये जो कुछ पूछे सच सच बता देना। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। मैं कुर्सी घसीट कर सुल्ताना के करीब ही बैठ गया। वो मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देख रही थी। मैंने कहा, सुल्ताना तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। अगर तुमने अपनी यही हालत बनाए रखी तो वो सदमे से बीमार पड़ जाएगी। मुझे साफ साफ बतला दो कि तुम किससे खौफजदा हो। क्या किसी ने तुम्हें जहनी अजियत पहुंचाई है? जवाब में कुछ कहने के बजाय वो खाली खाली नजरों से मेरी तरफ देखती रही। उसकी आंखों में पजमर्दगी दिखाई दे रही थी, यानी वो अफसुर्दा और गमगीन लग रही थी। मेरे सवाल पर उसके चेहरे या आंखों से किसी किस्म का तासुर जाहिर न हुआ था। देखो सुल्ताना, मैंने उसे बड़ी नरमी से समझाया, अगर खुदा न करे तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। लिहाजा अपनी खातिर ना सही, अपने वालिदैन और बहन भाई की खातिर तुम मुझे अपनी इस हालत का सबब बता दो। अगर कोई छुपाने वाली बात है तो मैं वादा करता हूं कि इसे अपने सीने में ही दफन रखूंगा। तुम्हारी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आएगा। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एकदम मेरी बात काटती हुई बोली, इज्जत वाली कोई बात नहीं। फिर कौन सी बात है, वही बता दो। डॉक्टर समझकर ना सही, दोस्त और हमदर्द समझकर ही सही। उसने आहिस्ता से पूछा, डॉक्टर साहब आप क्या मालूम करना चाहते हैं? यही सुल्ताना कि तुम किससे खौफजदा हो। अपनी कजन आसिया के साथ जिस रात तुम खेतों की तरफ गई थी उसी रात से तुम्हारी ये कैफियत हो रही है। मुझे बताओ, खेतों में तुम्हारे साथ क्या वाकया पेश आया था? क्या वहां तुमने कोई पुरस्कार चीज देख ली थी? उसने सपाट लहजे में कहा, डॉक्टर साहब आप फिलहाल मुझे घर भेज दें, मैं 1-2 दिन बाद आपको कुछ बता सकूंगी। मैं एकदम पुरुमीद हो गया और मैंने कहा, क्यों, अब क्या हर्ज है? वो कहने लगी, दरअसल बात काफी लंबी है और मैं ज्यादा देर आपके पास ही रही तो अम्मी न जाने क्या सोचेंगी। 5-10 मिनट के लिए उन्होंने क्या सोचना है, मैंने कहा। वो फीके अंदाज में मुस्कुराकर बोली, 5-10 मिनट नहीं, पूरे 2 घंटे चाहिए। अच्छा, मैं हैरान रह गया। लेकिन तुम वादा करो कि खुद को संभालने की कोशिश करोगी ताकि तुम्हारे माँ बाप परेशान ना हो। ठीक है, वादा रहा, मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें परेशान ना होना पड़े। तब मैंने उसकी माँ को अंदर बुलाया और उससे कहा, अब ये ठीक है, आप इसे खाना और दूध दें, चंद दिन बाद इसकी सेहत बहाल हो जाएगी। उसकी माँ खुश हो गई। चंद मिनट बाद सुल्ताना चली गई। मैं भी वापस अपने घर आ गया। अगले रोज मैं दोपहर के वक्त अपने मकान पर लंच कर रहा था कि फोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से सुल्ताना की आवाज सुनकर मुझे हैरत हुई। वो कह रही थी, मैं सुल्ताना बोल रही हूँ डॉक्टर साहब। सुल्ताना, मैं तुम्हारी आवाज सुनते ही पहचान गया था। तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैंने पूछा। ठीक हूँ डॉक्टर साहब, तभी तो फोन कर रही हूँ। वो आहिस्ता से हंसी। क्या तुम्हारे घर में टेलीफोन है या पीसीओ से कॉल कर रही हो? पीसीओ से डॉक्टर साहब, हमारे घर से करीबी है। आप शाम को फारिग हों तो यहाँ आ जाइएगा। आ सकेंगे? मैंने पूछा, क्यों नहीं, क्या तुम्हारे घर आ जाऊं? जी हाँ, 8 बजे के बाद। वो बोली, रात का खाना भी यहीं खाइएगा। खाने की तो खैर कोई बात नहीं, मैं सिर पिटा गया, लेकिन तुम्हारे वालिदैन, क्या उन्हें कोई एतराज ना होगा? वो कहने लगी, शाम से पहले अम्मी किसी को भेजेगी आपकी तरफ, आप उसे 8 बजे का वक्त दे दीजिएगा। इसके साथ ही उसने खुदा हाफिज कहकर फोन बंद कर दिया। मैंने भी रिसीवर रखा और सोचने लगा कि सुल्ताना की माँ मुझे किस सिलसिले में बुलाएगी। सुल्ताना के लहजे में मेरे जहन में सिर्फ इतना ही तासुर था कि वो एक खूबसूरत और जवान लड़की थी। इससे आगे मैंने देखने की कोशिश ही नहीं की थी, क्योंकि मैं शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था और मेरे बीवी बच्चे इन दिनों मेरे ससुराल गए हुए थे। लेकिन सुल्ताना का फोन आने के बाद उसके बारे में मेरी सोच बदल गई थी। मुझे महसूस हुआ कि वो मुझ में दिलचस्पी ले रही है, वरना मुझे घर में मदऊ करने की उसे क्या जरूरत थी। गुज़िश्ता रात हमारी 10, 12 या 15 मिनट की मुलाकात एक मरीजा और मौलिज की मुलाकात के अलावा कुछ नहीं थी।
मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा, फिर 4 बजे मैं घर से निकला। अस्पताल में चंद मरीज मेरे इंतज़ार में थे। मैं अपने कमरे में बैठकर उन्हें निपटाने लगा। तकरीबन 5 बजे सुल्ताना का छोटा भाई नासिर आ गया। गुज़िश्ता रात मैंने उसके बड़े भाई को देखा था, जिसका नाम उसकी माँ ने नासिर बताया था। नासिर 14-15 बरस का नौउम्र लड़का था। उसने पहले तो अपना तारुफ कराया, फिर कहने लगा, बाजी की तबीयत खराब है, अम्मी ने कहा है कि आप आकर उसे देख जाएं। जो भी आपकी फीस होगी हम दे देंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फीस की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। तो फिर चलिए, मैं भाईजान की बाइक लाया हूं, नासिर ने कहा। बाइक तो मेरे पास भी है, लेकिन 7 बजे से पहले मैं अस्पताल नहीं छोड़ सकता। तुम जाओ, मैं 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाऊंगा। जी बेहतर, मैं 8 बजे के करीब आ जाऊंगा आपको लेने के लिए। नहीं, तुम जहमत मत करना, मैं खुद ही आ जाऊंगा। मुझे अपने घर का पता समझा दो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नासिर ने मुझे एड्रेस बताया और चला गया। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगा कि दोपहर के वक्त तो सुल्ताना ठीक थी, अब उसे क्या हो गया। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद उसने मुझे बुलाने के लिए तबीयत की खराबी का बहाना बनाया होगा, क्योंकि उसने मुझे फोन पर पहले ही बुलाए जाने की बात बता दी थी और ये कहा था कि मैं रात का खाना उसके घर पर खाऊं। 7 बजे मैं ड्यूटी ऑफ करके अपने मकान पर आया और नहाने के बाद दूसरा लिबास पहनकर जाने के लिए तैयार हो गया। 7:45 बजे मैं अपनी मोटरसाइकिल पर कबीरवाला रोड की तरफ रवाना हो गया। 15 मिनट बाद मैं उनके मकान पर जा पहुंचा। दस्तक के जवाब में सुल्ताना का भाई नासिर ही बाहर आया। वो मुझे अंदर लाया। काफ़ी बड़ा मकान था और उसमें मुतअद्दिद कमरे थे। मैं नासिर के साथ सुल्ताना के बेडरूम में पहुंचा तो वो बिस्तर पर दराज थी और करीब ही उसकी माँ बैठी उसका सर दबा रही थी। मैंने सलाम किया। उसकी माँ ने मेरी आमद का शुक्रिया अदा किया और मेरे लिए कुर्सी मंगवाई। मैं बैठकर सुल्ताना की मिजाज पुरसी करने लगा। कल की निस्बत उसकी हालत बेहतर थी। उसकी माँ मेरे लिए खाना लाई और मेज़ पर सजाकर बोली, बेटे पहले खाना खा लो, फिर बातें करेंगे। मैंने इनकार करना मुनासिब न समझा। मैं जल्द अज जल्द सुल्ताना से उसका किस्सा सुनने के लिए बेताब था, इसलिए खाना खाने लगा। खाने के दौरान सुल्ताना की माँ कमरे में मौजूद रही। मैं फारिग हुआ तो वो खाने के बर्तन समेट कर बाहर चली गई। मौका पाकर मैंने सुल्ताना से कहा, सुल्ताना मुझे वापस भी जाना है, तुमने जो कुछ कहना है ज़रा जल्दी से कह डालो। वो कहने लगी, यहाँ नहीं, आपको मेरे साथ खेतों की तरफ जाना होगा, वहां मैं इत्मीनान से बात कर सकूंगी। उसने आहिस्ता से जवाब दिया था। मुझे हैरत हुई, आखिर वो कौन सा राज है जिसे वो अपने घर वालों से छुपाना चाहती है। फिर घर में बात ना करने का मतलब था कि कहीं वो लोग ना सुन लें। बहरहाल मैंने इसरार नहीं किया। उसकी माँ दोबारा आई तो सुल्ताना ने उससे कहा, अम्मी डॉक्टर साहब वो जगह देखना चाहते हैं जहां मैं आसिया के साथ उस रात गई थी। तो दिखा दो ना, इसमें क्या हर्ज है, मैं चलूं तुम्हारे साथ। अम्मी ने कहा, नहीं अम्मा जी, आप जहमत ना करें। मैं तेजी से बोला, आप मुझ पर एतमाद करें। ठीक है जाइए, बेतमादी वाली कोई बात नहीं। उसने हंसकर कहा, मैंने तो इसलिए कहा था कि सुल्ताना चल ना सकेगी, मैं इसे सहारा दूंगी, कहीं गिर ना जाए। फिक्र मत करिए, मैं इसे नहीं गिरने दूंगा। फिर मैंने सुल्ताना से पूछा, क्या तुम चल सकती हो? वो बिस्तर से उतरते हुए बोली, क्यों नहीं, आइए। मैं उसके हमरा घर से निकला और गली में चलता हुआ आबादी के अकब की तरफ बढ़ने लगा। चंद मिनट बाद हम आबादी से निकल आए। अब सामने हरे भरे खेत दिखाई दे रहे थे। अलबत्ता नीम तारीकी के सबब फसलों को पहचानना दुश्वार था। सुल्ताना मेरे आगे चल रही थी। उसकी रफ्तार सुस्त थी, जिसका सबब उसकी जिस्मानी कमजोरी थी। 2 खेतों के दरमियान से गुजरकर हम दूसरी तरफ पहुंचे तो बाएं जानिब दरख्तों का झुंड दिखाई दिया। सुल्ताना रुख बदलकर उस तरफ बढ़ने लगी। काफी बड़े बड़े दरख्त थे, जिनके दरमियान झाड़ीदार और कद्दे आदम पौधों की वजह से दूसरी तरफ का मंजर नजर न आ रहा था। सितारों की मध्यम रोशनी में सुल्ताना उसी तरह इत्मीनान से चल रही थी जैसे पहले भी इस तरफ आती जाती रही हो। हम दोनों दरख्तों से गुजरकर दूसरी जानिब पहुंचे तो मैं चौंके बगैर न रह सका। उस तरफ एक कब्रिस्तान था जिसे दरख्तों ने घेरा हुआ था। उसकी बेशुमार ऊंची नीची कब्रें थीं। कब्रिस्तान पर हू का आलम तारी था। मैं हैरान था कि सुल्ताना मुझे वहां क्यों लाई और उसने पहले क्यों नहीं बताया था कि वो मुझे कब्रिस्तान में ले जाएगी। मेरे कुछ पूछने से पहले ही वो एक बुलंद तावीज़ वाली कब्र के पास रुक गई। बैठिए डॉक्टर साहब। वो कब्र के पुख्ता चबूतरे पर बैठते हुए बोली, क्या यहाँ आना ज़रूरी था? मैंने उससे चंद इंच के फासले पर बैठते हुए कहा, जी हाँ डॉक्टर साहब। वो बोली, क्या आपको डर लग रहा है यहाँ? नहीं तो। मैं हंस पड़ा। यूं ही पूछा था, अब तुम शुरू हो जाओ। वो चंद लम्हों तक खामोश रही, फिर आहिस्ता से कहने लगी, उस रात मैं आसिया के हमरा चहल कदमी करती हुई इस तरफ आ निकली थी। रफ़ाए हाजत के लिए मैं उसे खेत के बाहर छोड़कर मकई की फसल में दाखिल हुई तो अचानक ही किसी चीज़ से पांव टकराया और मैं लड़खड़ा कर रह गई। मुझे अजीब सी तेज खुशबू महसूस हो रही थी।
میں نے غور سے نیچے دیکھا تو خوف کی شدت سے میرے حواس معطل ہو گئے اور منہ سے ذرا بھی آواز نہ نکل سکی۔ زمین پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ اندھیرے کے سبب اس کے خد و خال تو واضح نہیں تھے، البتہ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں بلور کی مانند چمک رہی تھیں۔ وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میری نگاہیں اس سے ملی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں سے نادیدہ سی مقناطیسی لہریں خارج ہو کر میری آنکھوں کے راستے میرے دماغ کو جکڑتی جا رہی ہوں۔ میں نے خوف کی شدت سے چیخنا چاہا، لیکن میرے منہ سے آواز خارج نہ ہوئی۔ حلق خشک ہو چکا تھا۔ دفتن اس عورت نے اٹھ کر میری کلائی تھام لی۔ اس کا ہاتھ برف کی مانند یخ تھا۔ میں اتنی خوفزدہ تھی کہ کوئی مزاحمت نہ کر سکی اور وہ مجھے کھیت کی دوسری جانب کھینچنے لگی۔ کھیت سے نکل کر وہ مجھے اسی قبرستان میں لے آئی۔ قبریں دیکھ کر میں اور بھی ڈر گئی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ عورت زندہ نہیں، لاش ہے، اور اس کا سفید لباس دراصل کفن ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی میں نے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ سلطانہ، وہ پہلی بار مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ کیا بات ہے؟ میں تمہیں کھا تو نہیں رہی ہوں جو تم بھاگنا چاہتی ہو، مگر تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ میں بمشکل بولی۔ ارے کیا تم نے پہچانا نہیں؟ میں تمہاری خالہ ہوں۔ وہ آہستہ سے ہنسی۔ تمہاری پیدائش کے 2 برس بعد میں ہمیشہ کے لیے یہاں آ گئی تھی۔ اب میں تمہیں اپنا گھر دکھانا چاہتی ہوں۔ تمہارے خالو جان انتظار کر رہے ہوں گے۔ میری بڑی خالہ کوثر میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی اور اس لیے مجھے اس کی شکل و صورت کی پہچان بالکل نہ تھی۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں نہیں جانتی، میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ مگر میں تو تمہیں جانتی ہوں نا، آؤ۔ وہ مجھے دوبارہ کھینچنے لگی۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تحکم تھا کہ میرے پاؤں خود بخود اٹھنے لگے۔ مجھے تاریکی میں ایک قبر کا تعویذ کھلا ہوا دکھائی دیا۔ وہ کفن پوش اسی قبر کے قریب رکی تو مجھے ہلکی ہلکی کراہیں سنائی دیں، جیسے کوئی مریض یا زخمی کراہ رہا ہو، اور وہ کراہیں قبر سے بلند ہو رہی تھیں۔ قبر سے ایک نحیف سی آواز ابھری، کیا تم آ گئی ہو رتنا؟ ہاں مہاراج، وہ عورت بولی۔ یقیناً اسی کا نام رتنا تھا۔ ذرا باہر آ کر دیکھو کیسا شکار لائی ہوں۔ تب قبر میں سے ایک کفن پوش آدمی باہر نکل آیا۔ اس کی شکل دیکھ کر خوف سے میری گھگی بند گئی۔ اس کا چہرہ پچکا ہوا اور آنکھیں خون کی مانند سرخ اور چمکدار تھیں۔ مجھے دیکھ کر خوشی سے اس کی باچھیں پھیل گئیں اور بالائی دانت دکھائی دینے لگے۔ ان میں 2 دانت دوسرے دانتوں کی نسبت دگنے لمبے اور نوکیلے تھے۔ خوف کی شدت سے میرے حواس معطل ہونے لگے تھے۔ بہت خوب، شاندار، وہ کفن پوش مردہ ہنس کر میری طرف بڑھا۔ مجھے ایسا ہی خوبصورت اور صحت مند شکار چاہیے۔ اس کی بات سن کر میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی ہوئی زمین پر آ گری۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ معلوم نہیں، البتہ جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں اسی کیفیت میں بیٹھی تھی جہاں سے مجھے رتنا لے گئی تھی، لیکن اب میں تنہا تھی۔ مجھے کمزوری کا احساس ہو رہا تھا اور جب میں زمین سے اٹھی تو یہ احساس تیز ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے میں کئی دنوں کی بیمار ہوں۔ اچانک ایک آواز سنائی دی، سلطانہ، اگر تمہیں اپنے والدین اور بھائیوں کی زندگی عزیز ہے تو کسی کے آگے ہمارا ذکر مت کرنا، اور کل رات جب سب لوگ سو جائیں تو خاموشی سے اسی جگہ آ جانا، ورنہ میں خود وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ سن کر میں سہم گئی۔ آواز اسی کفن پوش مردے کی تھی جسے رتنا نامی عورت نے مہاراج کہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ مجھے نظر نہ آیا۔ اسی لمحے اس کی آواز دوبارہ سنائی دی، کل رات 12 بجے سے پہلے تمہیں ہر حال میں یہاں پہنچنا ہے۔ اب تم جاؤ، تمہاری کزن انتظار کر رہی ہے۔ میں گرتی پڑتی کھیت سے باہر آئی تو آسیہ نے کہا، ارے اتنی دیر لگا دی؟ آسیہ جلدی چلو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا۔ گھر آ کر میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی، لیکن اس واقعہ نے مجھ پر اتنی دہشت طاری کر دی تھی کہ میں رات بھر سو نہ سکی۔ کفن پوش مہاراج کی دھمکی کے سبب میں نے زبان سی لی اور کسی کو اپنی حالت کے بارے میں نہ بتایا۔ امی نے سمجھا کہ مجھے آسیب چمٹ گیا ہے، وہ جھاڑ پہنچ کرانے میں لگ گئیں۔ دوسری رات میں مہاراج کی ہدایت کے مطابق آدھی رات کے وقت تنہائی چوری چھپے گھر سے نکل کر کھیتوں میں پہنچی تو وہاں رتنا موجود تھی۔ وہ مجھے لے کر قبرستان پہنچی اور مجھے قبر میں داخل ہونے کو کہا۔ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے گھورا اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والی لہروں نے میرے ذہن کو جکڑ کر مجھے ہر طرح کے احساس سے بیگانہ کر دیا۔ میں نہیں جانتی کہ میں قبر میں کیسے داخل ہوئی، البتہ کچھ حواس بحال ہوئے تو میں نے خود کو ایک چوکور اور پختہ کمرے میں فرش پر دراز پایا۔ کمرے کے در و دیوار اسے کسی قدیم عمارت سے تعبیر کر رہے تھے۔ بائیں جانب کی دیوار میں تاقچہ تھا جس میں ایک موم بتی جل رہی تھی اور اس کی کمزور پیلی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔
कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैं फर्श से उठना ही चाहती थी कि अचानक सिरहाने की जानिब से महाराज का स्याह और मकरू चेहरा मुझ पर झुक आया और उसे देखकर खौफ से मेरी चीख निकल गई। उसके साथ ही उसके हाथों ने मेरे कंधों पर गिरफ्त कायम कर ली और उसका मुंह किसी खून आशाम दरिंदे के जबड़ों की मानंद खुल गया। मैंने उसके नोकीले दांत देखे और दहशत के मारे साकित रह गई। अगले ही लम्हे उसका चेहरा मेरी गर्दन पर था और उसकी जुबान मेरी शाह रग पर मस कर रही थी। उसकी जुबान में न जाने क्या असर था कि मैं सुकून सा महसूस करने लगी और मज़ामत की ख्वाहिश दब कर रह गई। मेरे जहन पर एक अजीब सा सरूर तारी होता जा रहा था और दिल चाहता था कि हमेशा इसी तरह उसकी जुबान मेरी गर्दन पर चलती रहे। मुझ पर नशा सा तारी हो रहा था और मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होती जा रही थी। फिर अचानक मुझे अपनी शाह रग में सुइयां सी चुभती महसूस हुई। इस चुभन से मेरे ख्वाबीदा एहसासात यकदम बेदार हुए और ये महसूस करके कि उसके दांत मेरी शाह रग में पेवस्त हैं, तो मेरे हलक से बेख्तियार चीख खारिज हुई और मुझ पर गशी तारी होती चली गई। होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर दराज थी और बेहद नकाहत महसूस कर रही थी, इतनी ज्यादा कि मैं उठने से भी लाचार थी। मेरी अम्मी मेरी हालत पर रो रही थी, जो मुझे नाश्ते के लिए जगाने आई थी। उन्होंने मुझसे बार बार पूछा कि मुझे क्या गम है, क्या तकलीफ है, लेकिन मैंने जवाब में चुप साध ली, क्योंकि उस खून आशाम मुर्दे की धमकी मुझे याद थी और जुबान खोलकर मैं अपने वालिदैन और भाइयों की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। अगली रात 11 बजे मैं सोने के लिए बिस्तर पर दराज थी। घर के तमाम अफराद सो चुके थे। अचानक मुझे किसी ने पुकारा। मैंने बेख्तियार आवाज के सिमत देखा तो दिल धक से रह गया। रोशनदान के शीशे नहीं थे और कमरे में ट्यूब लाइट की रोशनी फैली हुई थी। चुनाचे रोशनदान में उस खून आशाम का मकरूज चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं और मुंह भयानक अंदाज में खुला हुआ था, जिसमें से उसके लंबे नोकीले दांत झांक रहे थे। उससे निगाहें मिलते ही मेरे आसाब जवाब देने लगे और जहन नादीदा लहरों में जकड़ता चला गया। चंद लम्हों बाद रोशनदान में से उसका चेहरा गायब हो गया और इसके साथ ही मेरे जिस्म ने हरकत की और मैं बिस्तर से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कोई गैबी ताकत मुझे अपनी जानिब खींच रही थी। मैं गोया नींद में चल रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को कब्रिस्तान में पाया। वो कफन पोश जिंदा लाश की मानिंद अपनी कब्र के चबूतरे पर बैठा मेरी तरफ देख रहा था। मैं किसी मामूल की तरह चलती उसके करीब पहुंची तो उसने मुझे अपनी आगोश में ले लिया और बेताबी से मेरी शाह रग पर अपनी खुरदरी जुबान फेरने लगा। गुज़श्ता रात की तरह मुझ पर सरूर की कैफियत तारी होने लगी और मैं दुनिया व माफिया से बेनियाज हो गई। होश आया तो मैं उसी कमरे में थी जहां उसने गुज़श्ता रात मेरे खून से अपनी प्यास बुझाई थी, लेकिन मैं वहां तन्हा न थी। रत्ना और महाराज दोनों मेरे दाएं बाएं बैठे थे। उन्हें देखकर मैं खौफ से कांपती हुई उठ बैठी। उसी लम्हे महाराज ने मेरी आंखों में झांका और मेरे जहन को गिरफ्त में ले लिया। सुल्ताना, आज से तुम मेरी दायमी गुलाम हो, उसने पाटदार आवाज में कहा। तुम्हारी ग़िज़ा ताज़ा और गर्म लहू है। जब तक तुम्हें यह ग़िज़ा न मिलेगी तुम बीमार और कमज़ोर रहोगी। चुनाचे तुम अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए किसी सेहतमंद जिस्म वाले फर्द को घेर कर यहाँ लाओगी और हम तीनों बारी बारी उसके खून से अपनी भूख मिटाएंगे। तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि किसी तरह शिकार को यहाँ तक ले आओ। तुम्हारा पहला शिकार वो डॉक्टर है जिसके पास ले जाने का फैसला तुम्हारी माँ कर चुकी है। कल शाम तक तुम्हारी हालत ना संभली तो वो तुम्हें अस्पताल ले जाएगी। फिर उसने रत्ना से कहा, रत्ना, इसे बाहर ले जाओ और इसके घर पहुंचाकर वापस आ जाओ। बहुत बेहतर महाराज, रत्ना ने मौदबाना लहजे में कहा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे से निकल आई। बाहर सख्त तारीकी थी। मैं उसके साथ नहीफ कदमों से चलती रही। चंद मिनट बाद उसने मेरा हाथ छोड़ा और तब वही रोशनी फैल गई। देखा तो मैं अपने कमरे में खड़ी थी और रत्ना का कहीं नामो निशान तक न था। सुल्ताना की बात सुनते ही मुझ पर खौफ तारी हो चुका था। उसका आखिरी जुमला सुनते ही मैं उछलकर खड़ा हो गया। मैं समझ गया था कि वो अपने खून आशाम आका की हिदायत के मुताबिक मुझे यहां लाई है। वो हैरत से बोली, क्या हुआ डॉक्टर साहब? मैंने उसकी तरफ देखा। वो मेरी ही तरफ देख रही थी और नीम तारीकी में उसकी आंखें बिलोर की मानंद चमक रही थी। तो तुम मुझे मेरा खून पीने के लिए यहां लाई हो? मैंने खौफजदा लहजे में पूछा। वो सर झुकाकर भर्राई हुई आवाज में बोली, डॉक्टर साहब, मैं मजबूर थी। महाराज ने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसके हुक्म की तामील ना की तो वो मेरी माँ और छोटे भाई को अपना शिकार बनाएगा। उनकी जिंदगी बचाने के लिए मैं गुज़श्ता रात फैसला कर चुकी थी कि आपको घर आने की दावत दूंगी और आप चूंकि मेरी कैफियत की वजूहात जानने में दिलचस्पी रखते हैं इसलिए आने से इनकार नहीं करेंगे। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बाएं जानिब से एक पाटदार आवाज उभरी, सुल्ताना,
डॉक्टर साहब को यहां लेकर आओ। मैंने तेजी से पलटकर उस तरफ देखा तो एक कब्र का तावीज खुला हुआ था और उसमें एक कफन पोश लाश सीने तक बाहर निकली हुई थी। तारीकी के सबब उसके खदोखाल वाज़ेह नहीं थे, अलबत्ता उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी मर्दाना आवाज से मैंने अंदाजा लगाया कि वो वही खून आशाम मुर्दा है जिसने सुल्ताना का खून चूसकर उसे भी आदमखोर बना दिया था। उसे देखते ही खौफ की शिद्दत से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। महाराज, ये दहशतज़दा है, सुल्ताना ने जवाब दिया। तब वो मुर्दा कब्र से बाहर आ गया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर मैं और भी दहशतज़दा हो गया और तेजी से एक तरफ भागा, लेकिन अंधेरे में एक छोटी सी कब्र से टकराकर लड़खड़ाया और मुंह के बल जमीन पर आ रहा। मेरे हलक से बेसाख्ता चीख निकल गई। मैं तेजी से उठा तो एकदम अपनी जगह मुंजमद होकर रह गया। वो कफनपोश खून आशाम मुर्दा मेरे सामने खड़ा अपनी चमकदार आंखों से मुझे घूर रहा था। डॉक्टर, वो खूनखार लहजे में बोला, क्या तुम्हें सुल्ताना ने नहीं बताया कि मैं कौन हूं? तुम लाश हो, मुर्दा और वैम्पायर हो। मैं खौफ से अकलाया। तुम मेरा खून पीना चाहते हो। उसका लहजा नरम पड़ गया। देखो दोस्त, तुम डॉक्टर हो और डॉक्टर मसीहा होता है, मुर्दों को जिंदा करता है। क्या तुम हमें अपना खून देकर हम में जान नहीं डाल सकते? बोलो, ये तो तुम्हारा मुकद्दस फरीजा है। उसकी बात सुनकर मैं एक लफ्ज भी ना बोल सका। वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, आओ नीचे कमरे में चलते हैं। उसकी पेशकश पर समझ गया कि वो मुझे अपनी कब्र में ले जाकर मेरा खून पीना चाहता है। मैं बमुश्किल बोला, नहीं नहीं। मगर उसी लम्हे उसने झपट कर मेरा एक हाथ अपने सख्त और यख बस्ता हाथ में ले लिया। मैंने दहशतज़दा होकर एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसकी मुखालिफ सिमत में दौड़ पड़ा। सुल्ताना वहां नजर न आ रही थी। बहरहाल इस पर गौर करने का वक्त नहीं था कि वो कहां गई। मुझे अपनी जान की फिक्र थी, इसलिए मैं शुतर बेमोहार की तरह दौड़ता हुआ कब्रिस्तान के गिर्द फैले दरख्तों में घुस गया। लेकिन जो ही मैं दरख्तों से निकलकर खुली जगह पर पहुंचा तो सामने खड़ी औरत ने दोनों बाजू फैलाकर मेरा रास्ता रोक दिया और खौफनाक आवाज में हंसने लगी। मैं सितारों की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा देखकर समझ गया कि वो रत्ना है। चुनाचे मैंने उसके सीने पर 2 हत्थड़ मारा और उसके मुंह से चीख निकल गई। वो लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिरी और मैं उसके जिस्म को फलांगता हुआ आबादी की तरफ दौड़ने लगा। अकब से मुझे उसकी तेज कराहें सुनाई दी, लेकिन मैंने पलट कर देखने के बजाय अपनी रफ्तार और बढ़ा ली। मैं दौड़ता हुआ आबादी में दाखिल हुआ और रुके बगैर सुल्ताना के घर के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा बंद था। मैंने इस्तरारी तौर पर दरवाजा पीट डाला। उन लोगों ने शायद मेरी मोटरसाइकिल उठाकर अंदर रख दी थी। अगर बाहर मौजूद होती तो शायद मैं यहां रुकने के बजाय उस पर बैठकर सीधा अपने घर चला जाता। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और मैं खोलने वाले को धकेलता हुआ अंदर घुस गया। वो सुल्ताना का बड़ा भाई था। वो लड़खड़ाया और संभल कर मेरी तरफ तहय्युर खेज निगाहों से देखने लगा, लेकिन मुझे उस वक्त इतना होश न था कि मैं उससे माजरत करता। मैंने तेजी से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। सुल्ताना के माँ बाप कमरे से निकल आए थे, क्योंकि मैंने दरवाजा इतने जोर से बजाया था कि सन्नाटे में दूर तक आवाज पहुंची होगी। मैं उन्हें देखकर बरामदे की तरफ बढ़ा तो मेरा सांस फूला हुआ था और मैं बुरी तरह हाँप रहा था। सुल्ताना का भाई भी मेरे पीछे चला आया। ओह डॉक्टर साहब, खैरियत तो है? मेरी हालत देखकर सुल्ताना के बाप ने सवाल किया। जी हाँ जी हाँ। क्या सुल्ताना अपने कमरे में है? मैंने तेजी से पूछा। क्या? वो तो आपके साथ गई थी, उसकी मां हैरत से बोली। मुझ पर अभी तक खौफ और बौखलाहट तारी थी, लेकिन उसके जवाब पर मेरे जहन को झटका लगा कि अपनी जान बचाने की कोशिश में मैं सुल्ताना को भूल गया और तन्हा ही वापस आ गया। यकीनन वो अभी तक कब्रिस्तान में ही थी और उसको वहां से लाना मेरी जिम्मेदारी थी। आप देखिए, शायद वो अपने कमरे में हो, मैंने परेशान होकर कहा। उसी लम्हे उसके कमरे से आवाज आई, मैं यहां हूं अम्मी। उसकी आवाज सुनकर मेरे मुंह से गहरा सांस खारिज हो गया। मैंने उसके वालिदैन और भाई से कहा, आप लोग आराम करें, फिक्र की कोई बात नहीं। फिर मैं उसकी मां के साथ उसके कमरे में पहुंचा तो वो बिस्तर पर दराज थी। उसका चेहरा नॉर्मल और किसी किस्म के तासुर से आरी था, अलबत्ता आंखों से वीरानी झांक रही थी। मुझे देखकर उसने आंखें बंद कर लीं। सुल्ताना, तुम कब वापस आई? मैं तुम्हें वहां तलाश कर रहा था, मैंने उसे मुखातिब किया। वो कहने लगी, डॉक्टर साहब आप चले जाइए, मैं अब ठीक हूं। उसने मेरी तरफ देखे बगैर सपाट लहजे में जवाब दिया। उसकी बात पर मुझे हैरत का झटका लगा। न जाने वो मुझसे क्यों निगाहें चुरा रही थी। मैंने मजीद कोई बात ना की और पलटकर कमरे से निकल आया। उसकी मां हैरान होती हुई मेरे पीछे लपकी। डॉक्टर बेटे, ठहरो जरा, कुछ मुझे भी तो बताओ, वो तन्हा कैसे आ गई थी? अम्मा जी, इस वक्त मुझे जल्दी है, आप कल दिन में अस्पताल आइएगा, वहीं बताऊंगा, मैंने बरामदे में रुकते हुए कहा।
सुल्ताना को साथ लाने की जरूरत नहीं है, वो अब ठीक है। ये कहकर मैंने सहन में खड़ी अपनी मोटरसाइकिल ली और वहां से वापस अस्पताल चला आया। जब मैं घर में सोने के लिए लेटा तो कब्रिस्तान के वाकया ने मेरी नींद उड़ा दी और मेरे जहन पर एक बार फिर खौफ ने कब्जा जमा लिया। मैंने अस्पताल के मुलाजिम असलम को तलब किया और उसे अपने कमरे के बाहर बरामदे में सोने की हिदायत की। वो हैरान तो हुआ, लेकिन उसने खामोशी से मेरे हुक्म की तामील की। दूसरी सुबह मैं हस्बे मामूल तैयार होकर अस्पताल में अपने फराइज अंजाम देने पहुंचा ही था कि सुल्ताना के भाई का फोन आ गया। उसने बताया कि सुल्ताना फौत हो गई है। शदीद हैरत ने उससे इज़हार अफसोस करने की मोहलत न दी और मैं उस वक्त चौंका जब डिस्पेंसर ने आकर मेरे हाथ से रिसीवर लिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो हैरत से मुझे घूर रहा था। उसने कहा, सर खैरियत तो है? आप 6-7 मिनट से रिसीवर उठाए खामोश बैठे हैं और बाहर मरीजों का रश होता जा रहा है। गुलाम अली, सुल्ताना फौत हो गई है, मैंने तवील सांस लेते हुए कहा। मुझे अभी उसके भाई ने इतला दी है। वो चौंकता हुआ बोला, ओह सर, बहुत अफसोस हुआ। मगर उसे क्या हुआ था सर? क्या आप गुज़िश्ता रात उसे देखने गए थे? हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। तुम जरा करीबी पुलिस स्टेशन फोन करके और SHO से मेरी बात कराओ। गुलाम अली ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा और पुलिस स्टेशन के नंबर मिलाए। राब्ता कायम होने पर उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। लीजिए, SHO जफर हयात खुद बात कर रहे हैं। मैंने इंस्पेक्टर जफर हयात से अपना तारुफ कराने के बाद सुल्ताना के बारे में पूरी तफसील और गुज़िश्ता रात पेश आने वाले वाकयात बयान किए। अब आप क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? क्या कत्ल का केस दर्ज किया जाए? उसने पूछा। नहीं, लेकिन तफ्तीश जरूर की जाए और अगर मुमकिन हो तो उस वैम्पायर को कानून की गिरफ्त में लिया जाए ताकि ये सिलसिला जारी न रह सके। इंस्पेक्टर ने कहा, बेहतर है, आप तैयार रहिए, दोपहर को हम उस कब्रिस्तान जाएंगे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और रिसीवर रखकर मरीजों को अटेंड करने लगा। दोपहर 2 बजे इंस्पेक्टर जफर हयात सादा लिबास में वहां आया और मैं उसके हमरा पुलिस मोबाइल में कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। कब्रिस्तान पहुंचकर मैं उस कब्र को तलाश करने लगा जिससे मैंने कफन पोश मुर्दे को निकलते देखा था। आखिर मैं कामयाब हो गया। इंस्पेक्टर ने सिपाही भेजकर मकामी गोरगन को तलब किया और उससे साहिब कब्र के बारे में पूछगिछ की। उसने बताया कि इस कब्र में एक हिंदू करण लाल को दफनाया गया था जो 15 बरस कबल हिंदुस्तान से यहाँ अपनी जन्मभूमि देखने आया था। क़याम पाकिस्तान से पहले वो इस गांव का जिम्मेदार था। तकसीम के बाद यानी हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद वो मौजूदा भारत चला गया था। यहाँ आते ही वो बीमार पड़ गया और उसके मरने के बाद उसकी लाश उसकी आखिरी वसीयत के मुताबिक महज इसलिए यहाँ दफना दी गई थी कि यहाँ कोई हिंदू घराना मौजूद नहीं था जो उसकी अर्थी को जलाने का इंतजाम करता। ये सुनकर मैं चकरा गया। इंस्पेक्टर जफर हयात ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब आपने सुन लिया? अगर वो वैम्पायर होता तो 15 साल बाद वो क्यों लोगों का खून पीना शुरू करता? बेहतर है कि आप इस चक्कर में ना पड़ें और इस मामले को छोड़ दें। अलबत्ता आइंदा ऐसा कोई वाकया रूनुमा हुआ तो फिर हम उसकी हड्डियां निकाल कर जला देंगे। वैसे अब तक उसकी हड्डियां भी मिट्टी हो चुकी होंगी। मुझे इंस्पेक्टर की बात से इत्तफाक करना पड़ा और मैं उसके साथ वापस आ गया। शाम को मैं सुल्ताना के जनाजे में शरीक हुआ। नमाज जनाजा के बाद उसकी मैयत मियाँ चन्नू ले जाई गई जहाँ उनका आबाई गाँव था। उसके बाद मेरा सुल्ताना के घर वालों से कभी राब्ता हुआ न मैंने कोशिश की। इस वाकया के 1 माह बाद मेरा खानेवाल से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, लेकिन सुल्ताना का वाकया आज भी मेरे जहन में ताज़ा है और जब भी मैं उन खौफनाक वाकयात का तस्वुर करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।